Hello, students. Well, let's continue with the lesson. Now, in the first lesson on Earth's movement, we had talked about how Earth is a dynamic entity, right? Earth कैसे एक dynamic entity है जो कि लगातार move कर रहा है, right? और इस movement में जो है exogenic forces और endogenic forces दोनों का जो है योगदान रहा है, दोनों की वजह से ये movement होते हैं. और इसके बाद हम लोग जो है ये केस स्टडी पढ़ने वाले थे बेस्ड ऑन टेक्टोनिक मूवमेंट्स, right? But before we move into this study of tectonic movements, let us review the the movement of the earth a little more, right? और साथ ही साथ जो है let's also check out some visualized you can say presentation about the movement of plate tectonics. So yeah. The surface of the Earth. These processes lead to the formation of new landforms, making the Earth a dynamic and ever-changing planet. Many theories have been propounded by scientists and geologists to explain these processes. One of such theories is the theory of continental drift, propounded by Alfred Wegener. Alfred Wegener theorized that Pangaea, one supercontinent nearly 200 million years ago, began to break, resulting in the drifting apart of the continents from each other. So well students, इस एनिमेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कैसे वैगनर की थ्योरी जो है प्रपोज करती है कि पैंजिया जो कि एक जायंट कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट था, वो जो है कैसे ब्रेक अपार्ट होना शुरू हुआ, कैसे जो है वो लैंड मास अलग अलग टुकड़ों में बट के जो है मूव करना शुरू कर दिया था. In the light of new evidences in the form of sea floor spreading, his theory was reaffirmed. This new evidence proved that newer sea floors are formed when lithospheric plates, the various large and small irregularly shaped plates of the lithosphere, split apart. देखिए ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो ये एविडेंस है, ये बेसिकली ये प्रपोज करता है या फिर ये दिखाता है कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये जब ब्रेक अपार्ट होते हैं, जब ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो इसकी वजह से जो है सी फ्लोर जो है, नया सी फ्लोर जो है वो फॉर्म होता है. न्यूअर सी फ्लोर्स आर फॉर्म्ड, राइट? And as a result, like sea floors are of course like spreading through that process. This geological occurrence, when the various lithospheric or tectonic plates are in motion, is called the theory of tectonic plates. Let us now dig deeper into this theory to understand how and why it changes the surface of the Earth. To begin with, there are two types of lithospheric plates, oceanic plates and continental plates, forming the floor of the ocean and continents respectively. These plates float on the asthenosphere, a zone in the upper mantle that is partially molten. इसके बारे में हम लोग जो है प्रीवियस लेसन्स में चर्चा भी कर चुके हैं कि अर्थ का जो सरफेस है ये जो है एक आपका जो है बेसिकली लाइक जो क्रस्ट आप कह सकते हैं, तो ये जो है ओशियानिक है और फिर कॉन्टिनेंटल है. कॉन्टिनेंटल की मोटाई ज्यादा है, ओशियानिक की मोटाई जो है वो कम है. और ये जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स या ओशियानिक प्लेट्स हैं वो किसके ऊपर मूव कर रहे हैं? दे आर मूविंग ओवर स्थिनोस्फीयर. स्थिनोस्फीयर जो है वो अपर मेंटल का ही एक पार्ट है जो कि सेमी मोल्टेन स्टेट में रहता है, मोटा मोटी पिघली हुई अवस्था में रहता है, जिसके ऊपर की ये प्लेट्स जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं. The intense heat generated in the Earth's core creates a circulation patterns known as convection currents in the mantle. अब क्लास 7 में ही जब आपने हीट के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पर आपने जाना होगा कि हीट के जो है मूवमेंट के लिए अलग अलग जो है मेथड्स है, लाइक कंडक्शन इन सॉलिड बॉडीज, एंड देन वी हैव कन्वेक्शन,
जहां पर कि पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा स्पेस ज्यादा होता है, लाइक लिक्विड एंड गैसेस। इनमें जो है कॉन्वेक्शन के मेथड के थ्रू जो है हीट का ट्रांसफर होता है। और फिर तीसरा रेडिएशन, राइट, जिसके थ्रू की सन की हीट जो है वो हमारे पास पहुंचती है। कॉन्वेक्शन में क्या होता है कि नीचे का पार्ट जहां पर ज्यादा गर्मी होगी तो वो मैटर जो है वो जब ज्यादा गर्म होगा तो वो ऊपर की तरफ उठेगा। ऊपर की तरफ उठेगा तो जो मैटर ऊपर होगा वो रिलेटिवली थोड़ा ठंडा होगा। तो जो गर्म मैटर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है वो अपना हीट जो है वो दूसरे में भी ट्रांसफर करता हुआ जाएगा, है ना। धीरे धीरे ऊपर आकर वो फिर से ठंडा होगा। ठंडा होने पर फिर से वो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। और इन द मीन टाइम नीचे वाला जो मैटर है वो गर्म होकर फिर से ऊपर की तरफ उठने लगेगा। और इस तरीके से जो है एक कॉन्वेक्शन करंट फॉर्म होता है जो कि लगातार ऐसे मूव करता रहता है। और इस कॉन्वेक्शन करंट के मूवमेंट की वजह से सिर्फ हीट का ही ट्रांसफर नहीं होता है, इसकी वजह से जो है इन प्लेट्स के मूवमेंट में भी जो है मूवमेंट के लिए भी जो है एनर्जी मिलती है। In the mantle. As when the convection current of the asthenosphere ascends or descends, these tectonic plates converge, diverge, or transform, leading तो बेसिकली लाइक इन कन्वेक्शन करंट के उठने वाले फेज पर या नीचे जाने वाले फेज पर, राइट, असेंड या फिर डिसेंड। तो जब ऊपर की तरफ उठेगा कन्वेक्शन करंट तो उसकी वजह से कुछ जो है मूवमेंट होगा। जब नीचे की तरफ जाएगा ये कन्वेक्शन करंट, यानी कि मैटर जो है जब एस्थेनोस्फीयर में नीचे की तरफ जाएगा तो उसकी वजह से भी कुछ प्लेट टेक्टोनिक में मूवमेंट होगा। और इसकी वजह से जो है कन्वर्जेंस हो सकता है जहां पर दो प्लेट एक दूसरे के पास आके जुड़ेंगे। डाइवर्जेंस हो सकता है जहां पर प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। या फिर ट्रांसफॉर्म हो सकता है जहां पर प्लेट्स जो है वो एक दूसरे के रिलेशन में जो है स्लाइड करेंगे, या फिर एक नीचे धंसेगा दूसरा ऊपर रह जाएगा। डिफरेंट तरह के मूवमेंट्स जो हैं अर्थ के सरफेस पर वो पॉसिबल है ड्यू टू दीज कन्वेक्शन करंट्स। to formation of new landforms. When the convection current in the asthenosphere ascends, the lithospheric plates diverge or pull apart horizontally. तो जब स्थिनोस्फीयर में जब मैटर असेंड करता है, यानी कि कन्वेक्शन करंट जब ऊपर की तरफ उठता है तो उसकी वजह से क्या होता है चेंज, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं वो फिर ड्रिफ्ट अपार्ट करते हैं, एक दूसरे से जो है दूर की तरफ मूव करते हैं। और इस वजह से जो है ओशियन कॉन्टिनेंट्स बनते हैं और बीच में जो है ओशन बेसिन्स बनते हैं। Leads to formation of new lithospheric material, continents and oceans basins. The places where the convection current in the asthenosphere descends, the lithospheric plates above it converge or move horizontally towards each other, leading to the formation of deep sea trenches and mountains. और वही जो है जब ये कन्वेक्शन करंट्स जो है डिसेंड करती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं, तो उसकी वजह से जो है ये प्लेट्स जो है वो एक दूसरे की तरफ जो है कन्वर्ज करते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं। ये कन्वर्जेंस जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो दूसरे लिथोस्फेरिक प्लेट के नीचे की तरफ जो है वो जा सकता है। इस प्रोसेस में जो है ओशियानिक ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं। ओके, दूसरी तरफ जो है ये लिथोस्फेरिक प्लेट जो है वो एक दूसरे के साथ कन्वर्ज होने पर जो है ऊपर की तरफ उठ सकते हैं और इस प्रोसेस में जो है फोल्ड टाइप का, और उस वजह से जो है माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। Thus we see that the earth is in a state of constant change and motion, creating new landforms in the process. सो वेल स्टूडेंट्स, अभी तक के सेशन में हमने यही देखा कि एक तो हमने जो है अर्थ के अंदर जो डिफरेंट ये अर्थ के अंदर की एनर्जी की वजह से जो सरफेस पे मूवमेंट्स होते हैं उसको हमने देखा, और उसकी वजह से किस तरह से डिफरेंट जो है लैंडफॉर्म्स तैयार होते हैं, इनको भी हमने देखा। अब जो है इस हीट की वजह से ही जो टेक्टोनिक प्लेट्स का ये मूवमेंट होता है, इसकी वजह से कई जो है नए नए फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, लैंड फॉर्म्स क्रिएट होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट थ्रू दिस केस स्टडी, एंड देन वी विल आल्सो लाइक फर्दर सी हाउ डिफरेंट माउंटेन्स और लाइक फॉल्ट्स आर क्रिएटेड थ्रू अनदर एनिमेशन।
The tectonic, the tremendous heat present in the interior of the earth causes internal movements known as tectonic movements. अर्थ के अंदर जो भयानक गर्मी मौजूद है उसकी वजह से जो है इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं, याद है ना वो कन्वेक्शन करेंट्स, और उन कन्वेक्शन करेंट्स की वजह से जो है क्या होता है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स जो है वो पैदा होते हैं। तो इन टेक्टोनिक मूवमेंट्स के जो है दो टाइप हैं, एक हो गया वर्टिकल मूवमेंट और horizontal movement, right? There are two types of tectonic movements, vertical and horizontal. Vertical movements which cause the uplift of the earth's crust. This uplifted portion may become a plateau or a continent. वर्टिकल मूवमेंट के केस में क्या होता है, तो अर्थ का क्रस्ट जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है और ये उठा हुआ पोर्शन जो है वो एक पठार बन सकता है, प्लेट्यू बन सकता है, या फिर ये एक नया जो है कॉन्टिनेंट ही बन जाएगा। इन केस ऑफ सबसिडेंस, सबसिडेंस मतलब धंसना, तो सबसिडेंस के केस में जो है अर्थ के क्रस्ट का एक हिस्सा जो है वो धंस सकता है, नीचे की तरफ जो है सिंक कर सकता है और वो वैली फॉर्म कर सकता है। दूसरी तरफ जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स जो होते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट गिव राइज टू टू फोर्सेज। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से दो फोर्सेज पैदा होती हैं, पुशिंग और कंप्रेशन एंड स्ट्रेचिंग और टेंशन। ओके, तो या तो वो पुश करेगा एक दूसरे की तरफ या फिर जो है ये स्ट्रेच करेगा, खींचेगा दो अलग अलग डायरेक्शंस में। These movements cause folding and faulting of the crust, creating mountains and rift valleys. तो ये जो मूवमेंट्स हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स, क्रिएटिंग पुशिंग और कंप्रेशन इफेक्ट और स्ट्रेचिंग और टेंशन इफेक्ट, इन मूवमेंट्स की वजह से जो है क्रस्ट का जो है फोल्डिंग और फॉल्टिंग होता है, इससे माउंटेन्स और रिफ्ट वैलीज जो है वो तैयार होती हैं। नेक्स्ट इज, तो फोल्डिंग के बारे में पहले देख लें हम कि फोल्डिंग के इफेक्ट में क्या होता है। द कंप्रेशनल मूवमेंट्स कॉज फोल्डिंग और बेंडिंग द लेयर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रॉक्स। कंप्रेशनल मूवमेंट में क्या होगा, इधर से एक प्लेट टेक्टोनिक इधर से गया, दूसरा प्लेट टेक्टोनिक जो है वो इधर से गया, दोनों के आपस में जो है टकराने की वजह से जो है कह सकते हैं कि कंप्रेशन पैदा होगा और उस कंप्रेशन की वजह से सरफेस पर जो है ये फोल्ड जैसा बन जाएगा, राइट। तो यही हो गया आपका फोल्डिंग। फोल्डिंग में जो है दो तरह का सरफेस बना, जो उठा हुआ हिस्सा रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एंटीक्लाइन, और जो नीचे धसा हुआ वाला हिस्सा रहेगा दिस विल बी कॉल्ड सिंक्लाइन। ओके, इसके लिए जो है आप एक एक्टिविटी भी करके देख सकते हैं कि आप एक सिंपल कपड़े का पीस लीजिए और उसको दोनों तरफ से आप जो है पुश करिए, आप देखिए ये कपड़ा जो है वो बीच में उठ जाएगा। ओके, तो ये जो अपफोल्ड और डाउनफोल्ड जो बनता है, राइट, और इसकी वजह से क्या होता है कि कपड़ा जो दूर तक फैला हुआ है वो थोड़ा पास में सिक्योर किया जाता है। तो इस तरीके से आप खुद भी जो है इस एक्टिविटी के थ्रू देख सकते हैं कि फोल्डिंग का प्रोसेस कैसे काम करता है। अप फोल्ड को क्या कहते हैं, एंटीक्लाइंस, जो उठा हुआ फोल्ड है, और जो नीचे की तरफ धसा हुआ फोल्ड है उसे कहते हैं सिंक्लाइन, राइट। अप फोल्ड्स आर कॉल्ड एंटीक्लाइंस एंड डाउन फोल्ड्स आर कॉल्ड सिंक्लाइंस। Now this is what happens when a part of the earth is pushed against another. जब धरती के एक हिस्से को दूसरे हिस्से के अगेंस्ट पुश किया जाता है तो यही होता है। Now such forces have created the highest mountains in the world, like the Himalayas of India, Rockies of North America, the Andes of South America and the Alps of Europe. दुनिया भर के जो सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं सब जो है ऐसे ही फोल्डिंग प्रोसेस से बने हैं। दूसरा क्या है, लैंडफॉर्म में चेंज का प्रोसेस, दैट्स फॉल्टिंग। फॉल्टिंग जो है वो टेंशन की वजह से पैदा होता है। रॉक्स बेंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट बिफोर दे क्रैक अलोंग द लाइंस ऑफ वीकनेसेस कॉल्ड फॉल्ट्स। इसमें जो है पत्थर जो है, रॉक्स जो होते हैं वो मुड़ते हैं कुछ हद तक, उसके बाद वो क्रैक कर जाते हैं इन फॉल्ट लाइंस के अराउंड में। The whole block of rock gets displaced. अब इसमें पूरा का पूरा जो रॉक का जो ब्लॉक है वही डिस्प्लेस हो जाता है, और ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, एक रॉक का ब्लॉक जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, बगल के जो रॉक के ब्लॉक्स है वो दूसरी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट जो है हॉरिजॉन्टल हो सकता है, या फिर ये वर्टिकल फॉल्ट हो सकता है, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो रॉक्स हैं वो अपनी जगह पर हैं और ये वाला जो है ये वर्टिकली सीधा सीधी नीचे की तरफ धंस गया है।
So, a good example of such a fault is the San Andreas fault in California. Okay, California का जो San Andreas fault है वो इसका example है. Now, when a part of the Earth's crust is uplifted, a block mountain is formed. अब जब अर्थ के क्रस्ट का एक हिस्सा जो है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगा, अगर जैसे मान लीजिए यही ब्लॉक जो है वो ऊपर की तरफ उठ गया अगर, तो इस केस में क्या होगा, तो एक ब्लॉक माउंटेन फॉर्म होगा. तो वॉस्किस माउंटेन्स फ्रांस का, सतपुड़ा और विंध्या रेंजेस इंडिया में, ये सभी इस तरह के माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं. नाउ फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग आर स्लो टेक्टोनिक मूवमेंट्स. फोल्डिंग और फॉल्टिंग की जब हम बात करते हैं तो ये जो है स्लो टेक्टोनिक मूवमेंट्स है. The sudden and violent movements of the earth results in earthquakes and volcanic eruptions. जो अचानक से और तेजी से जो मूवमेंट होता है अर्थ में, उसकी वजह से जो है भूकंप आते हैं और volcanic eruptions होते हैं. Alright, so after reading this case study, you have got an idea of the sort of like changes that could be sort of changes that could be brought by like endogenous forces of the earth, right? जो endogenous forces हैं उसकी वजह से जो changes आ सकते हैं वो हम लोग जान गए हैं इसके बारे में. Welcome अब to now Mac let's Million. like check out these animations to see how these endogenic forces actually create different sort of landforms. किस तरह से ये जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं और उसकी वजह से जो अर्थ के मूवमेंट होते हैं तो उससे कैसे जो है डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं उसको हम लोग एक बार देखते हैं. And that will be the end of this session. Major landforms. Formation of mountains. Mountains are formed as a result of the movement of the lithospheric plates in the Earth's crust. This movement results in folding and faulting of the Earth's crust. Folding. What is folding? When two lithospheric plates move towards each other and collide, wrinkles are formed in the rock layers of the Earth's crust. This is called folding. The ridges thus formed are called anticlines, and the valleys are called synclines. well, देखिए फोल्डिंग का मैकेनिज्म आपने देख लिया कि स्थिनोस्फीयर में जो मूवमेंट होते हैं उस वजह से जो है कंप्रेशनल फोर्सेज एक्टिव होते हैं और उस वजह से जो है लिथोस्फीयर जो है वो फोल्ड हो जाता है और इसमें उठे हुए हिस्से को अपफोल्ड को एंटीक्लाइन कहते हैं और जो डाउनफोल्ड है उसे कहते हैं सिंक्लाइन. The Appalachians in the USA, the Urals in Russia, and the Aravalis in India were formed long ago and is called Old Fold Mountains. कि अब आपने जो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल देखा, इसमें अरावलीज भी एक एग्जांपल है. The Old Fold Mountains have rounded peaks and gradual slopes. The Himalayas, Rockies, Alps, and Andes are young fold mountains as they are still being subjected to plate movements. The young fold mountains have pointed peaks and steep valleys. Faulting. When the lithospheric plates move, fissures and fractures occur in the rock structure due to stress and strain. Block mountains and rift valleys are formed as the result of the displacement of the rock structure. This is faulting. अब फॉल्टिंग में आप देख रहे हैं कि जब कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, राइट. नेक्स्ट नॉर्मल फॉल्ट हम देखते हैं. यहाँ पर जो है ऑफ कोर्स लाइक टेंशनल स्ट्रेस होगा और फॉल्ट लाइन जो है वो यहाँ पर किस तरह का मूवमेंट क्रिएट करेगा, तो एक दूसरे से दूर लेके जा रहा है, इसको कंप्रेशनल स्ट्रेस क्रिएट करेगा. रिवर्स फॉल्ट में क्या होगा कि एक जो फॉल्ट लाइन पर जो है एक जो लिथोस्फेरिक प्लेट होगा वो दूसरे के ऊपर जो है ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, राइट. और ट्रांसफॉर्म या टियर फॉल्ट में क्या होता है, तो एक प्लेट जो होगा वो एक डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा जो है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगा. तो इस तरह के जो है फॉल्टिंग की वजह से जो लैंडफॉर्म्स तैयार होते हैं उनमें एक की है आपका ब्लॉक माउंटेन्स. Most parallel faults and the land between them is either uplifted or left standing even after the surrounding areas have subsided. The uplifted part is a horst or block mountain and the subsided part is a graben or rift valley.
तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो अपलिफ्टेड पार्ट है ये ब्लॉक माउंटेन कहलाया, और ये क्या कहलाएगा, ऑफ कोर्स ये वैली हो गया आपका। And the subsided part is a graben or rift valley. Block mountains are a result of rivers faulting, where the movement of plates is compressional. In normal faulting, the movement of plates are tensional and in opposite directions. The Vindhya and Satpura ranges of India and Black Forest Mountains of Germany are examples of block mountains. Death Valley in the USA is an example of graben. San Andreas Fault in California is an example of tear fault where the rock structure has been displaced laterally. Volcanoes. The magma, which is a mix. So, well, we will stop this session right here, and we will keep our discussion of volcanoes for the next session. Okay, so let's take a break here. इस सेशन में हम लोगों ने जो है मेनली ये देखा कि किस तरह से एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है, और इन मूवमेंट्स की वजह से डिफरेंट तरह के जो है लैंडफॉर्म्स तैयार होते हैं, मेनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोल्डिंग और faulting, right? Now let's meet in the next session, and then we will talk about volcanoes. Okay, bye bye.